Hello, Namaskar. Welcome to the lecture of mathematics. Let's start with the topic 3. We are directly continue with this topic. Till now we have completed topic 1 and topic 2. Just let me recall something for you. In topic 1 we have studied definition, and topic 2 we have studied order of matrix. Definition is so simple, as we have studied arrangement of some numbers, arrangement of some complex numbers or real number or both exist in the rectangular form can be said as matrix. It can be symbolized or it can be covered in two types of bracket. Either it can be small bracket or big bracket, and all these entry can be said as elements or entries, and this matrix can be denoted by any capital letters. And the order of matrix, as we know, order of matrix is symbolized by m cross n form, where m is number of rows and n is number of columns. Say this one is having 3 rows and 2 columns, so it is said to be 3 cross 2 matrix, or its order is 3 cross 2. Here we have got 3 cross 3 matrix, here we have got 2 cross 3 matrix, because we have found 2 rows and 3 columns. The first digit always denotes number of row and second digit always denote number of column. Okay, and then in order of matrix, as we have found, the number of elements in any matrix which can be mn. So based on this also we have found, we have solved some questions in our last lecture. And denotation of any matrix in A equal to Aij form, where m cross n denotes the number of row and column, and based on that we can write any types of matrix, and this Aij can be elements which can be denoted by any algebraic operation, and we have solved one question for that also. Example 1, example 2 and example 3 are based on this theory. Let us start with the topic 3. In topic 3 we need to study types of matrix. So we have many different types of matrix, and the importance of this type of this topic is especially for identifying the matrix, that this particular matrix or whatever particular matrix are in the category of what. We can differentiate different kind of matrix with their special characteristic, as we have 7 types, basic types. These are given in NCERT books, and some other types are also there, but which are not given in NCERT book, that we will study in form of JEE topic. So the first one is column matrix. Column matrix, the name itself says that it has one column only. If we have one column, you can see there is so many rows, like 1 or 2 or 3. Number of rows can be anything, but if number of columns are 1, then this is simply a column matrix. It we can see ये दिख ही रहा है हमको एक column जैसा, that is why it is called as column matrix. It has one column, its order is always m cross 1. M cross 1 means number of row is m and number of column is 1. In general we can write this matrix A equal to Aij m cross 1 equal to this one. For example, I can write suppose 1 2 3, then this is also one column matrix. Suppose say 5 minus 6 7 8, this is also column matrix. 2 3, this is also column matrix. Number can be anything, number can be from the complex number also, 5 plus I 6. Okay, this is also a column matrix. Then row matrix. If we have one row, then it is called as row matrix. Say its order is 1 cross n. See, from the picture only we can find that it is row matrix. We have only one row, see, and number of columns are anything. So that is why its order are always 1 cross n. 1 is denoting what? Number of row, and n denoting what? Number of column. So simply it is having one row and many number of columns are there. So in general we can write this matrix as this one, and for example I can write 1 2 3. This is say row matrix, or we can say 5 we don't need to write any comma in between 2 numbers or 3 numbers in matrix. Always just keep in mind 7 plus I 4 5 6 7, whatever. If number of row is fixed, that is 1, then it is always row matrix. Let's have square matrix. Name itself says that it is completely a square. Square means what? Like say if you have
2 by 2, 5, 6, 7, 8. This is pictorially we can say it is a square. Number of row and number of column are always same. See, the definition says that number of rows are always equal to number of column, and it is always square matrix, and its order is n cross n. Number of row is n, then number of column is also n, so that is why it is always n cross n. In general, we can denote it as B equal to Bij, where n cross n is always denoting number of row and column, and they are always same. For example, we have taken this one, then we can take 5 minus 6 7 3 cross 3, see, 2 minus 4 minus 5 minus 1 2 3. This is 3 cross 3 matrix. So it can be any 4 cross 4 matrix or 5 cross 5 matrix or 6 cross 6 matrix. These all are possible, and many more. So these all are now square matrix in which always number of row and number of column are similar. And let's complete one note also for that. This Aij 1 cross 1, see, 1 cross 1, what it denotes, the name itself says that 1 is number of row and 1 is number of column. If number of row and number of column are 1, then say it is like 5. Number of row is 1 and number of column is also 1. So we have only one element. It is also called as singleton matrix. We have only single elements, that is why it is also called as singleton matrix. As number of row and number of column are same, they are also in the category of square matrix. As number of row is 1, if number of row is 1, then it is also called as row matrix. If number of column is 1, then it is also called as column matrix. In the definition of row matrix, what we have seen, if number of row is 1, here number of row is 1, that's why it is also in the category of row matrix. If number of column is 1 in column matrix, it has only one column. If number of column is 1, here we can see number of column is also 1, that's why it is also in the category of column matrix. So it is column matrix, row matrix, square matrix, and singleton matrix. So we have 4 names for this: row matrix, column matrix, square matrix, and singleton matrix. So this singleton matrix, in which we have only one element, and it is in the category of all the 4 different types of matrix. Okay. Diagonal elements. See, what is this diagonal elements? Then let me start with an example. Say this is 1 2 4 5 6 7 8 minus 2 3. Okay. First of all, it is always possible in square matrix. Let me clarify first. Diagonal elements are always possible in square matrix only. See, this is what diagonal in square matrix में ही diagonal होता है ना, वैसे rectangle में भी होता है, but in which in rectangular format of array, कोई भी अगर समझ लो ऐसा कोई rectangular arrangement है 5 6 7 2 3 4, then we cannot find exactly diagonal element. Diagonal बन जाता है, see this is what diagonal, but here ये दोनों नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं रही. ये दोनों नंबर मतलब सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट है वो कोई भी डायगोनल की लाइन में नहीं आ रहे. सो दैट्स वाई वी कैन नॉट कंसिडर एनी डायगोनल एलिमेंट्स इन अदर मैट्रिक्स, नन अनदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में ही स्पेशली अगर सिंपली डायगोनल बनाया जाए तो डायगोनल के अंदर सभी कॉलम में या फिर सभी रो में एक एक एलिमेंट आएगा. तो स्पेशली it is we are getting this diagonal elements in always in square matrix. Here we have categorized in 2 parts, that is principal diagonal elements or leading diagonal. Then this one is principal diagonal element when 1 6 3. See, 1 6 3 is always principal diagonal, and secondary diagonal element, this 8 6 and 4, these 3 are secondary diagonal elements. This is 1 6 3 is principal diagonal, and 8 6 4 are secondary diagonal. Okay, most probably this principal diagonal are important in our chapter, so we are concentrating only on principal diagonal, but for the sake of completion in the theoretical part I have given this instruction of secondary diagonal also. Okay, although we will not use this particular things, secondary diagonal, in our lecture, in our syllabus most probably.
and this is what especially in JEE we have found. I have found one topic based on square matrix. In square matrix, Aij and Aji. See, someone can say this Aij and Aji. What is this Aij and Aji? Then to clarify the information of Aij and Aji, let me take one example of matrix A in form of A11, A12, A13 in this form, so that everyone can be easily understood this picture of Aij and Aji. Well, I know how to write this matrix in a very fast speed. Slowly you can also remember or mug up all these things, so that you can also write these things in a fast speed. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Every numbers are based on their number of row and number of columns. See this A32, as you can see, A32 we have written over here A32, then this number is denoting what? Third row and second column. So I have written this A11, A12, A13, these all numbers based on the theoretical concept that we have studied in our last lectures, in our last videos. Okay, so here Aij and Aji, what it denotes? Let me take one example, A12, then here what we need to write is A21, Aij then Aji. If we write 1, 2, then we need to write 2, 1. If we write here 2, 3, then we need to write 3, 2. It denotes what? A12 and A21. They are talking about A12 and A21. They are talking about A23 and A32. So if we have A12 here, see, A21 here. So these two elements are always conjugate element. In any square matrix, these two elements are always square matrix conjugate element. This one A13 and A31, these two elements are always again conjugate element. Similarly, this element and this element are again A23 and A32. These two elements are always in conjugate pair. Understood? These two elements are always conjugate element. A13 and A31, these two elements are always again in a conjugate element, and this element are always again in a conjugate element. So just for the sake of completion of theoretical part, I have taken this particular topic. Maybe in some paper they can ask kind of word, or they can use kind of word conjugate element. Then we can easily find what is this. Okay, let me take one another example in which I can easily say what is this. Say let me take one 4x4 question, 4x4 matrix. 1, 2, 3, 4, minus 2, 3, 1, 7, 5, 6, 7, 9, 4, 3, 2, 1. Okay, this is up to here. Okay, here I can see this two elements, then I can write here 2 and minus 2 are conjugate element. This 3 and 5, see 3 and 5, ये डायगोनल की रिफ्लेक्शन में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं, रिफ्लेक्टिव एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये 3 है तो यहाँ पे 5 है, ये दोनों कंजुगेट एलिमेंट है. यहाँ पे 4 है तो इस तरफ डायगोनल के इस तरफ एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिव एलिमेंट ये 4 है. देन दिस 2 इज ऑल्सो कंजुगेट एलिमेंट. If you have found 1 over here, then 6 over here, based on this reflective element of with respect to this diagonal, we have got 1, 6 are also again conjugate element. This 7 and 3 are also conjugate element. 9 and 2 are also conjugate element. And this one diagonal element तो कोई भी है ही नहीं किसी के साथ conjugate में. So conjugate pair में हम कैसे element लिखेंगे, that is what I need to give in this theory. So it is not that much of important, especially in NCERT, but whenever we find this word, definitely we should know what is exactly meaning of this word. Diagonal matrix. Okay, name itself says that diagonal matrix means what? Diagonal में ही element होंगे, बाकी सब zero. Simple. अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या? डायगोनल के सिवा जो जो एलिमेंट है, यहाँ पे देख सकते हो ये डायगोनल के अंदर ये सभी एलिमेंट है, तो डायगोनल के सिवा बाकी सब जो एलिमेंट है ये डायगोनल के सिवा, वो भी कौन सा? फर्स्ट प्राइमरी डायगोनल के सिवा. प्राइमरी डायगोनल के सिवा जो जो एलिमेंट है वो सभी अगर जीरो है, प्राइमरी डायगोनल के सिवा मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर वो जीरो है, तो उसी को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. लेट मी टेक वन एग्जांपल.
सी 1 0 0 0 5 0 0 0 2, देन दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। सी अगर ये डायगोनल के सिवा अगर सभी एलिमेंट 0 0 है तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे। ओके, डेफिनेशन क्या कह रही है, वंस अगेन देख लो, डायगोनल के सिवा नॉन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर फोकस करना है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल के सिवा जो जो एलिमेंट है अगर वो 0 है तभी उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसकी सेकंड मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स सिंबल, वेयर Aij मीन्स एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज 0 0 फॉर व्हाट, व्हेन I नॉट इक्वल टू j, व्हेन I नॉट इक्वल टू j मीन्स व्हाट, I एंड j दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम है तो क्या हुआ, तो ये देखो ये दोनों सेम कहाँ पे है, यहाँ पे देखो A11 I एंड j सेम, A22 A33 A44 ANN, ये सभी डायगोनल एलिमेंट में हमेशा ही I एंड j दोनों इक्वल होगा। उसके सिवा जो भी एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज डजंट हैव सिमिलर I एंड j। सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट देन फॉर दिस I इज व्हाट 1, why, because it is in first row, it is in first row, and j is what, j क्या होगा, तो j होगा सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम का है तो j होगा 2। सी ये जो भी जीरोस बाकी सब जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट के जो भी जीरोस है वो सभी जीरोस में I एंड j की वैल्यू हमेशा ही अलग होगी। तो इफ I इज नॉट इक्वल टू j देन इट्स एलिमेंट Aij, उसके एलिमेंट को हम अगर 0 बोलेंगे तभी उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। ओके और डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A22 A33 A44 अप टू ANN। हमको पता है कि हमको सिर्फ यही एलिमेंट चाहिए, बाकी सब एलिमेंट तो वैसे भी 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ वी राइट दिस थिंग्स इन अ रो, अगर इसी चीज़ को हमने रो में लिख दिया A11 A22 A33 अप टू ANN तो भी इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बट हाँ एक कन्फ्यूज़न है, अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं तो ये रो मैट्रिक्स बन जाता है। वी माइट बी कन्फ्यूज दैट इट इज़ रो मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स बोथ आर नॉट सेम। डेफिनेटली रो मैट्रिक्स में तो हमेशा एक ही रो होगी और डायगोनल एलिमेंट में तो बहुत सारी रो होती है, n बाय n है अगर मैट्रिक्स तो n रो होगी, एंड n रो एंड n कॉलम दोनों n होगा। तो फिर अलग क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, when we need to write this diagonal symbol of this diagonal element, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है DIAG डायगोनल, पूरा नहीं लिखा होगा, DIAG सिर्फ लिखा होगा, एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स जैसा दिखा दिया होगा, then we always say that this is diagonal matrix। अगर हम इसको इसी मैट्रिक्स को लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं DIAG 1 5 2। सी दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, से 2 0 0 0 5 0 0 0 और यहाँ पे भी अगर 0 है चलो चलेगा। अगेन देख लेते डेफिनेशन के हिसाब से हो रहा है क्या, हो रहा है। ये डायगोनल के सिवा जो जो एलिमेंट है, डायगोनल के सिवा जो जो एलिमेंट है बाकी सभी एलिमेंट 0 है यहाँ है। अगर डायगोनल के सिवा जो जो एलिमेंट है वो 0 है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या, यस। डेफिनेशन के हिसाब से नॉन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर ही फोकस करना है। अगर वो 0 है डायगोनल के सिवा, नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर उसके सिवा जो भी एलिमेंट है अगर वो 0 है, ऊपर नीचे वाले सभी एलिमेंट अगर 0 है उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको अगेन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 250 DIAG 250। क्लियर? For that again I have covered one JEE notes because this notes again not given in NCERT syllabus। NCERT में कोई क्वेश्चन में या फिर कोई एग्जाम्पल में भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। So let me take these things in a theoretical part of diagonal matrix, especially it comes in a diagonal matrix. What is minimum number of zeros in diagonal matrix of n cross n? Yeah, let me remind you one more thing. Here I have written one more thing, that is it is always square matrix। हाँ, ये हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। जैसे हमने क्या बताया कि अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, डायगोनल के अंदर के जो भी एलिमेंट है उसकी बात करें तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे, जैसे हमने एग्जांपल में लिया ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में स्पेशल कंडीशन अगर है कि इससे डायगोनल के सिवा जो एलिमेंट है बाकी सब 0 है तो वो क्या बन जाएगा, डायगोनल एलिमेंट।
then we can say that this diagonal matrix is also one of the type of square matrix. Simple. तो हम आगे जब पढ़ने वाले सब मैट्रिक्स वो उसमें बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो गए, दैट it is one of the square matrix, but if we have some special condition then we might have some special name. स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर स्पेशल कंडीशन है तो उसको हम स्पेशल नेम से डिनोट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज मैं यहाँ पे समझाने के टाइम पे ये पर्टिकुलर सेंटेंस को भूल गया था कि ये हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा. ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n ऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के n क्रॉस n वाले डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम जीरो कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोस आर पॉसिबल, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आर पॉसिबल. तो अगर मिनिमम ज़ीरो लिखने हैं, अगर हमको मिनिमम ज़ीरो लिखने हैं तो मैंने बताया कि डायगोनल में तो हमेशा ही ज़ीरो होंगे. सही, अब समझ लो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 3 क्रॉस 3 का. ओके, तो उसमें ये 3 जो जगह है वो 3 जगह के सिवा जो भी 3 बाकी की जगह है वो हमेशा ही ज़ीरो होगी, तभी उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है. और ये इसको मैं कौन से नंबर से भरूँ ताकि मुझे मिनिमम से मिनिमम ज़ीरो मिले, तो ये हमेशा ही मैं नॉट ज़ीरो वाले नंबर डाल दूँ. मतलब समझ लो मैंने यहाँ पे k डाल दिया, k1 k2 k3 कोई भी नंबर डाल दिया, बट वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए. अगर ये भी ज़ीरो है तो ज़ीरो बढ़ जाएंगे, ज़ीरो विल इंक्रीज itself. But what we need to find here, we need to focus on minimum number of zero. तो मिनिमम से मिनिमम कितने जीरो पॉसिबल है, तो मिनिमम से मिनिमम ये 3 जीरो यहाँ पे और ये 3 जीरो यहाँ पे, ये इतने तो आएंगे और आएंगे ही एज पर द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. इस तीनों डायगोनल वाले एलिमेंट को अगर मैं ज़ीरो ना रखूँ तो मुझे सबसे कम से कम जो पॉसिबल है उतने ज़ीरो मिल जाएंगे. तो अगर 3 क्रॉस 3 वाला कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर मैं डायगोनल के उसके अंदर अगर मैं ज़ीरो काउंट करने जाऊँ, मिनिमम ज़ीरो काउंट करने जाऊँ तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6. ओके, 6. ठीक है, ये 6 कैसे बना, उसको अगर मैं थियोरेटिकल पार्ट में कन्वर्ट करूँ तो कैसे आया. तो ये थी इसको काउंट बनाने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो मैं टोटल पहले नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर लेता हूँ. नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 3 क्रॉस 3, 3 स्क्वायर. नंबर ऑफ एलिमेंट 3 स्क्वायर है, उसके अंदर मैंने सब ट्रैक कर दिए ये तीनों डायगोनल के एलिमेंट. और डायगोनल के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, तो जितनी रो या फिर जितनी कॉलम रहेगी उतने, मतलब अगर वो n रो वाला एलिमेंट है तो उसमें n रहेगा, 3 रो वाला या 3 कॉलम वाला एलिमेंट है, 3 रो या 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है तो उसमें 3 डायगोनल एलिमेंट रहेंगे. सो दिस इज सिंपल 3 स्क्वायर -3. सिमिलरली अगर वो n/n वाला मैट्रिक्स है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ज़ीरो रहेंगे, अगर यहाँ पे n/n होता तो कितने ज़ीरोज़ रहते, तो यहाँ पे हो जाता n स्क्वायर माइनस n. 3 स्क्वायर डिनोट्स व्हाट, 3 स्क्वायर मीन्स number of rows, number of elements in matrix which is n square. अगर ये n/n होता तो number of elements in matrix is n square and number of elements in diagonal elements, then it is n. So n square minus n denotes what, minimum number of zeros. Okay, let me take one example for this also. मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 4 क्रॉस 4. 4 क्रॉस 4 में मिनिमम से मिनिमम कितने नंबर पॉसिबल है, तो एज पर द फॉर्मूला डायरेक्टली आई कैन राइट 4 स्क्वायर माइनस 4 विच इज 16 माइनस 4 दैट इज 12. टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर दिस थिंग्स व्हाट आई कैन राइट हियर, से नॉन ज़ीरो एलिमेंट कोई भी मैं ले लेता हूँ. यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम ज़ीरो रखने हैं ना, तो मैं जितने बन सके उतने कम ज़ीरो यूज़ करूँगा. ये तो मैं डायगोनल में एक भी ज़ीरो नहीं यूज़ कर रहा हूँ और बाकी सब तो मुझे कंपलसरी ज़ीरो रखने ही है ना. देख लो. ओके, फर्स्ट रो में 1 0 0 0 ओके, 0 2 0 0 ओके, 0 0 3 0 ओके, 0 0 0 4 ओके. सो दिस इज व्हाट स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो. सब कितने ज़ीरोस इसमें काउंट हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. We have found 12 number of zeros. So ये तो अगर समझ लो 4/4 है तो भी इस तरह से सोच सकते हैं. अगर इसमें मैं लिख दूँ कि चलो ये मैट्रिक्स में ऑर्डर है से 10/10,
देन ऐसे थोड़ी बनाने जाएंगे, यू डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला 10 square minus 10 which is 90, 100 minus 9 that is 90. So this is simple things. Maximum number of distinct elements in a diagonal matrix of order n cross n is equal to n plus 1. Okay, how we got this? What is this maximum number of distinct element? Let me take one example to understand this particular theory. Let me take an example of 3 cross 3 matrix. 3 cross 3 matrix is always आइडियल मैट्रिक्स. बहुत सारे क्वेश्चन भी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले मोस्टली सभी क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 वाले या फिर 2 क्रॉस 2 वाले ही होंगे. ऐसा कोई 2 क्रॉस 2 वाला भी मैट्रिक्स हम ले सकते हैं, बट 2 क्रॉस 2 वाले मैट्रिक्स से हमको ज़्यादा समझ में नहीं आ सकता. मे बी मतलब वी कांट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द सिचुएशन. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सिचुएशन एग्जैक्टली, टू बी प्रिसाइज, वी ऑलवेज यूज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. सो लेट मी टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट कितने पॉसिबल है अगर n क्रॉस n का कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो. तो मैंने बताया वैसे भी कि भाई समझ लो ये 3 क्रॉस 3 वाला एलिमेंट है. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A B, let me take this A से B and C, और ये 0 0 0 0 0 0 कंपल्सरी, ये सब तो 0 ही है फाइनल. तो ये एक एलिमेंट हो गया. दिस इज कंसिडर्ड एज वन एलिमेंट बिकॉज ये सभी हमेशा ये सेम ही रहेंगे. और इसको अगर मैं 0 के सिवा कुछ भी रखूँ, से मैंने यहाँ पे रख दिया 2, यहाँ पे रख दिया 3, यहाँ पे रख दिया अगेन 2, तो मेरे पास कितने डिफरेंट एलिमेंट आए. तो ये जीरोस, ये 2, ये 3 एंड 2, तो मेरे पास टोटल डिफरेंट एलिमेंट कितने बने. तो यहाँ पे 2 तरह के एलिमेंट आए क्योंकि ये इसमें भी मैंने 2 इसको कम सिमिलर रखे थे. तो मेरे पास टोटल कितने पॉसिबल हुए, तो 3 पॉसिबल हुए यहाँ पे 1 + 2. बट ये उससे भी ज़्यादा पॉसिबल है. यस, कैसे? अगर मैं ये तीनों एलिमेंट को ही डिफरेंट रखूँ, तो मतलब मैं A, B एंड C तीनों को अलग रखूँ. जैसे मैंने इसको रखा 1 2 3. लेट मी टेक दिस थिंग्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, नॉट A B C. आई कैन राइट इट एज अ से 1 2 3 0 0 0 0 0 0. Then this is what the matrix in which I have considered each and every element, if possible I have taken in a distinct form. मतलब ये 1 2 3 अलग अलग रखे और इसको तो मुझे हमेशा ही 0 0 ही रखना पड़ेगा because it is a diagonal matrix. So how many different types of elements I got here? That is 4. कैसे बना ये 4? तो ये 3 तो कहाँ से बने? 3 डायगोनल से बने, और 1 कहाँ से बना? हमेशा ही 0. सो ये बन गया 3 + 1. अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो 3 + 1. तो अगर n क्रॉस n का है तो कितने होंगे बच्चों? अगर वो n क्रॉस n का है तो बनेगा n + 1. 3 + 1 की जगह n + 1. सो द फाइनल आंसर इज n + 1. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाया है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5. 5 क्रॉस 5 कितने बनेंगे? 5 + 1. कितने डिफरेंट एलिमेंट आएंगे? 6. सिंपल. ओके, स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? Scalar matrix is again one of the type of diagonal matrix. Before we understand this particular theoretical part, let me take one example again for this scalar matrix. Say I can take say 7 7 7. It is again one of the diagonal matrix, but इसमें खास चीज़ ये है कि इसमें डायगोनल वाले सभी एलिमेंट होंगे ना, जो डायगोनल वाले एलिमेंट वो हमेशा ही एक ही होंगे, एक सिमिलर. जैसे मैं अगर इसको इन जनरल कोई एक फॉर्म में लिखूँ तो ऐसा लिखा जाएगा. ये डायगोनल वाले जो भी एलिमेंट है वो एक ही सिमिलर नंबर ही होंगे. तो के सभी डायगोनल एलिमेंट है k और बाकी सब 0. तो ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है. हाँ है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो रही है. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है. अगर वो तीनों एलिमेंट डायगोनल वाले अगर फिक्स है, एंड फिक्स कोई भी एक क्वांटिटी, मतलब वो 0 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, 0 भी हो सकता है, उसका स्पेशल नाम भी है. बट ये अगर 0 है तो भी उसको हम डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं. इट शुड बी सिमिलर. इट मे बी 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 7 7 7. सी, then this is what scalar matrix. Definition के हिसाब से क्या होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज 0
and diagonal element are always fixed, constant, anything means anything, any k. सो अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं तो होगा वो स्केलर मैट्रिक्स. इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज जीरो. नॉन डायगोनल एलिमेंट जो मैंने आपको पहले बताया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए ऑलवेज नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा. डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज फिक्स एंड इक्वल, and it is always a square matrix. Also I can write it is always square matrix and it is also a diagonal matrix. क्लियर, ये हमेशा ही डायगोनल मैट्रिक्स भी रहेगा. इन जनरल इसको हम लिखते हैं ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन. दिस इज व्हाट सिंबल ऑफ मैट्रिक्स वेयर दिस ए आई जे, दिस एलिमेंट, ए आई जे मीन्स एलिमेंट, और एलिमेंट क्या डिनोट कर रहा है, ये सभी जो एलिमेंट वो क्या डिनोट कर रहे हैं, के या फिर जीरो. इसमें या तो के आएगा या तो फिर जीरो आएगा. के कब आएगा, अगर आई एन जे सेम है. आई एन जे वो सेम कब होता है, डायगोनल के लिए. देख लो ये वाला 1 1, आई बी 1 जे बी 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, आई एन जे दोनों 2 2, आई एन जे दोनों 3 3. अगर आई इक्वल टू जे है तो उसमें हम कोई भी क्वांटिटी के रख सकते हैं. अगर आई इक्वल टू जे नहीं है, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो हमेशा ही जीरो आएगा. अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स. ओके, और दिस के कैन बी एनीथिंग, के बिलोंग्स टू आर, कोई भी कॉन्स्टेंट चलेगा. ठीक है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. सिमिलरली अगेन हम अगर डायगोनल मैट्रिक्स में या फिर स्केलर मैट्रिक्स में, स्पेशली इन स्केलर मैट्रिक्स, अगर स्केलर मैट्रिक्स में ये जो के है उसको मैं 1 लिख दूं, ठीक है, ये के को अगर मैं 1 लिख दूं तो वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो ये हो गया हमारा बेसिक मैट्रिक्स विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स. सी, इट कैन बी सिंबलाइज विथ आई एन. अगर 3 क्रॉस 3 है तो इसको हम I3 भी लिख सकते हैं. इन जनरल वी आर सिंबलाइजिंग विथ आई एन. आई एन मीन्स व्हाट, n क्रॉस n वाले कोई भी मैट्रिक्स, n क्रॉस n वाला कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रहेगा, मतलब 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन राइट n क्रॉस n के कोई भी अगर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो वो I5 या फिर I3 या फिर I4, ये अलग अलग तरह के. अगर 5 क्रॉस 5 का है तो I5, 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है तो I6. ये अलग अलग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम दे सकते हैं हम. सो हमेशा ही डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इक्वल एंड 1. लेट मी टेक इट इज एज 1. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो होंगे. आगे की डेफिनेशन हमने देख लिया. इट इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स. वाई, बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है. हाँ, हो रही है. ये मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है. डायगोनल की हो रही है, यस, डायगोनल वाले ही एलिमेंट है, बाकी सब एलिमेंट जीरो है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी फुलफिल हो रही है. स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, ये हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी ये बोला जा सकता है. मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, वेयर ए आई जे इक्वल टू 1 या तो फिर 0. 1 कब होगा, जब डायगोनल का एलिमेंट आएगा तब, मतलब आई इक्वल टू जे होगा तब 1 1 1, तब 1 होगा, और जब भी ये आई एंड जे सेम नहीं है तब ऑलवेज 0. सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स. इन जनरल वी कैन राइट 1 0 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. ये कौन सा हो गया, 4 क्रॉस 4 वाला. इसको लिख सकते हैं हम I4. अगर I2 लिखना है 2 क्रॉस 2 वाला तो 1 0 0 1, सिंपल. दिस इज I2. दिस ऑल आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, आई हैव रिटन दिस. यस, वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई IN. अगर ऑर्डर n बाई n का है तो उसको हम IN से डिनोट करेंगे. एंड वी हैव ऑब्जर्व ओवर ईयर, रिटर्न ओवर ईयर अगेन. अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और उसको हम क्या बोलेंगे 1. तो ये जो भी आगे की डेफिनेशन में के की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, वही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, स्केलर मैट्रिक्स जहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसमें के हमेशा क्या होगा 1. बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली अ स्केलर मैट्रिक्स. सो दैट, नॉट बट, so that
एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये 4 मैट्रिक्स लिखे हैं, उसका नाम हमको देने हैं। कौन कौन से नाम पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये या तो फिर स्क्वायर होगा या फिर स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है या फिर डायगोनल हो सकता है। ये इसमें से हमको ढूंढ के देना है कि ये कौन कौन सा नाम इसमें पॉसिबल है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, यस स्क्वायर है। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, तो नहीं, डायगोनल के सिवा जो भी एलिमेंट है, डायगोनल के सिवा जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट 0 नहीं है, इसलिए डायगोनल नहीं है। डायगोनल नहीं है तो ये स्केलर भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है, ठीक है। ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, यस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, यस। यहाँ पे डायगोनल के सिवा जो एलिमेंट है, मतलब ऊपर वाले सभी 0 है और नीचे वाले भी सभी 0 है। डायगोनल के सिवा जो भी एलिमेंट है, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो उसको हम बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देन स्केलर मैट्रिक्स है क्या, नो स्केलर नहीं है। आइडेंटिटी है क्या, नहीं। स्केलर क्यों नहीं है, क्योंकि स्केलर में हमेशा ये तीनों एलिमेंट, डायगोनल के तीनों जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, इक्वल होंगे, तो ही उसको हम स्केलर बोलेंगे, ठीक है। ये वाला, चलो ये वाला स्क्वायर है क्या, यस स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सिमिलर, सो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या ये, यस डायगोनल के सिवा जो एलिमेंट है वो सभी 0 है। ये सब डायगोनल के ऊपर नीचे वाले जो एलिमेंट है वो सब 0 है, तो उसको हम बोल सकते हैं डायगोनल, यस। स्केलर है क्या, यस स्केलर क्यों है, क्योंकि डायगोनल के अंदर √3 तीनों के तीनों सिमिलर है, तो इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी है क्या, नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये तीनों के तीनों 1 1 1 हो गए, तभी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। देन फोर्थ वन स्क्वायर है क्या, यस ये तो अब देख के ही पता चल रहा है स्क्वायर है, यस। डायगोनल है, हाँ है, क्योंकि डायगोनल के सिवा बाकी सब 0 है, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। देन स्केलर है, हाँ है, क्योंकि स्केलर में हमेशा ही डायगोनल वाले एलिमेंट सिमिलर होंगे, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट सिमिलर होंगे, तो उसको हम स्केलर बोल सकते हैं, यस। आइडेंटिटी है क्या, यस। अगर स्केलर एलिमेंट जो भी है, वो जो भी के है, उसको अगर 1 1 1 लिख दे, ये तीनों के तीनों जहाँ जो एलिमेंट है अगर 1 1 है, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सो दिस इज सिंपली अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Let's have 7th part, that is null matrix or zero matrix. What is this null matrix or zero matrix? तो बस zero matrix नाम ही कह रहा है कि भाई इसमें सभी एलिमेंट 0 होंगे, all its elements are 0. And one more thing, it is not always square matrix. ये square matrix हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ही square matrix होगा नहीं। मतलब इसको हम zero matrix बोल सकते हैं क्या, हाँ इसको बोल सकते हैं। क्या इसको बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, हाँ इसको भी बोल सकते हैं। क्या हम इसको बोल सकते हैं क्या, यस। ये सभी जीरो मैट्रिक्स है। अगर सभी एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर 0, देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स, वो जीरो मैट्रिक्स ही है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय ओ, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ये सभी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए, ठीक है। एंड JEE टॉपिक 1 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विल सी टुमारो। ये सभी टॉपिक को हम आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल नाउ वट एवर यू हैव स्टडीड ऑल द 7 NCERT मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, NCERT की बुक में जो दिए हैं वही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हमने आज स्टडी किया। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी एंड जीरो मैट्रिक्स। दीज आर अगेन द बेसिक मैट्रिक्स वी ऑलवेज नीड टू नो how we can identify all this matrix. Clear? ठीक है, चलो थैंक यू दोस्तों। एंड वन मोर थिंग, जो हमारी ये वीडियो लेक्चर से जो बुक बना रहे हैं वो सभी को, कि अगर ये टॉपिक आप कवर कर रहे हो तो इस टॉपिक में से क्या क्या लिखना है, ये तो ये पूरा टॉपिक ही लिखना है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बताया था कि हमको एक फेयर बुक बनानी है, उसमें हमको ये सब टॉपिक लिखने हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। क्योंकि अगर आप NCERT बुक में से अगर कुछ फॉलो कर रहे हो और वहाँ पे जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको बेस देख के अपनी बुक बना रहे हो, तो वो सब बनाने में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। अगर ये मेरे मटेरियल से फॉलो कर रहे हो तो आई हैव टेकन ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द NCERT बुक, ईच एंड एवरी कंसेप्ट
मैंने उसी में से लिए हैं, और कोई भी ऐसा कंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा जो हमको नहीं पता रहेगा और एनसीईआरटी बुक में होगा। तो सभी टॉपिक, सभी कंसेप्ट, सभी रिजल्ट, सभी फॉर्मूलाज को मैंने यहाँ पे बराबर से लिख के आपको समझाने की कोशिश की है। तो लेट मी क्लियर वन मोर टाइम दैट दिस टॉपिक 3 यू नीड टू राइट थरोली, फुल्ली, आपको पूरा लिखना है, पूरा टॉपिक 3 लिखना है, तो जो मैंने बताया वो सब चीज़, ठीक है। और एनसीईआरटी के और जेडब्ल्यू की नोट्स अगर लिख रहे हो तो बराबर से उसको भी लिखनी है, so that you can get exactly what situation we can find in NJEE also meanwhile, साथ में ही। थैंक यू।